Okay, okay. Let us start with. So, what we did last time? Tell me where we stopped exactly last time. We have done with words, then fitting and word Acha, fitting what? reaction. Okay, fine, fine. So, and what about elimination reaction? Was it done? Elimination reaction? No, no. No, sir, we have to about. Okay, okay. So far we have completed uh, two main reactions. Was addition, and second was condensation reaction. Correct. In addition reaction, it was formation of Grignard's reagent. Correct. And second reaction was the condensation reaction. Under that we did Wurtz reaction, Wurtz Fittig reaction, and Fittig reaction. Correct. Fine. Now today we'll be completing the third main reaction, that is an elimination reaction. We're doing chemical properties. So, Yeah. so I had a doubt. What is the so alcoholic KOH और aqueous KOH में क्या फर्क होता है? Alcoholic KOH Ha 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 elimination ha reaction कैसे से ha करते हैं? ha ha. I'll make you understand in this, but in today's discussion. Don't worry. Now the third reaction is elimination reaction. Now, can you define elimination? Anybody here? What is an elimination reaction? Yes. A reaction in which the halide part of alkyl halide is removed from the alpha carbon and beta hydrogen is removed from any one of the beta hydrogen. Yeah. So basically, elimination reaction in general, it is a reaction in which a compound splits to give two or yeah, fine. So what is an elimination reaction? It's a reaction in which a compound, okay, it splits up into two or more products. Clear? Okay. Now it means that a single compound undergoes reaction to give two or more products. Now examples of elimination reaction are dehydrohalogenation reaction. The first reaction, this particular reaction is given by your alkyl halides. Okay, this is going to be our discussion in this topic. Okay, in under elimination reaction. Then we have second reaction, which is dehydration reaction. Correct. Then we have one more reaction I'm writing here. It's a dehalogenation reaction and etc. Correct. Now, what is the meaning of dehydrohalogenation reaction? D means loss, hydro matlab H, and halogen means X. Correct. So loss of HX is dehydrohalogenation reaction. Correct. Since HX is lost, correct. Hydrogen and halogen are lost, means it's a reaction of alkyl halides. Correct. Next, here for dehydration, again, what is the meaning of D? De is a loss. Hydration means what? HOH. That is what? Water. Loss of water. Means, now you tell me which class of organic compound contains OH in it? Tell me. Which class of organic compound contains, Hydroxyl, okay, the same I'm asking you. कौन सा compound जो class होता है इसमें OH group होता है? Alcohol. alcohol, Alcohol. Very good. So dehydration reaction is a kind of elimination reaction and is given by alcohol. Correct? Dehydrohalogenation is a reaction given by alkyl halide. Okay. And the last one, the loss of halogen. ये है X2 इसमें loss होगा, chlorine, bromine, iodine loss होगा. Correct? Okay, fine.
ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन तुम लोग को था। अभी हम लोग ना अल्काइल हैलाइड से रिलेट करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर तुमने अल्काइल हैलाइड लिया, आरएक्स लिया, और उसको तुमने अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH के साथ में हीट किया, तो वो इट अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, अल्कीन, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखूंगा, देखो पहले उसको, फाइन, ओके। यहाँ पे मैं अभी स्टेटमेंट लिखूंगा, आई राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, करेक्ट। यहाँ पे क्या करना है, एक अल्काइल हैलाइड लेना है, एन अल्काइल हैलाइड, करेक्ट। उसमें कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, करेक्ट, दैट्स इन अ कंडीशन। हीट विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करो, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, ऐसे टाइप्स होते हैं, लेकिन तुम लोग को सिलेबस में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, तो it undergoes beta elimination reaction to give alkene. I'll make you understand what is beta elimination. Okay, बताता हूँ मैं, okay। उसके बाद में एक एग्जांपल देने के बाद में मैं तुम लोग को इसका I'll give you the characteristics also. अब जरा ध्यान से देखना, okay। Now example is action of alcoholic KOH ऑन से इथाइल ब्रोमाइड, ओके। इथाइल ब्रोमाइड पे ये एक्शन मुझे देना है, इथाइल ब्रोमाइड पे ये रिएक्शन देना है अपने को। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला ना एक्सपैंड करके लिखना है। इथाइल ब्रोमाइड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ऐसे लिखा दिखाना है, करेक्ट। प्लस इधर लिखेंगे हम लोग KOH, करेक्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे ऐसे। और एरो पे ना अल्कोहलिक कंडीशन ना कंपलसरी है लिखना। अगर तुमने अल्कोहलिक नहीं लिखा या एथेनॉलिक नहीं लिखा या इथाइल अल्कोहल नहीं लिखा तो मार्क्स से डिडक्ट हो जाएगा डेफिनेटली, ओके। अच्छा चलो, अभी अब सबस्ट्रेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपना सबस्ट्रेट कौन है, इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड में मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन है, हु इज द फंक्शनल ग्रुप इन इथाइल ब्रोमाइड? Br. Br, वेरी गुड। और Br जो, हाँ या फाइन, Br जिस कार्बन को अटैच्ड है दैट इज अल्फा, करेक्ट, करेक्ट ना। व्हाट इज अल्फा कार्बन? What is alpha carbon? Yes, carbon atom attached to the functional group is known as alpha, correct। और अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या है, बीटा है। तो लेट्स लेबल इट लाइक दिस, अल्फा बीटा लेबल कर दिया, करेक्ट। अच्छा, अब इधर होगा क्या, ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा कार्बन से ना Br जाएगा और वो K को कंपनी देगा, और क्या बन जाएगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बीटा कार्बन से ना एक हाइड्रोजन निकलेगा, देखो मैंने अंडरलाइन किया हाइड्रोजन, करेक्ट। और वो जाके किसको रिएक्ट करेगा, OH को रिएक्ट करेगा, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2O, ठीक है। प्लस अब बचा क्या इधर, जस्ट लुक एट द बीटा, बीटा कार्बन पे अब दो हाइड्रोजन बच गया, करेक्ट ना, दैट इज व्हाट CH2, ओके। और अल्फा CH2, और दोनों के बीच में इनिशियली कितना बॉन्ड था, एक, लेकिन एलिमिनेशन के बाद में एक बॉन्ड और आ जाएगा ऐसे। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसका नाम क्या है, इथीन। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ सबको ये रिएक्शन? अच्छा, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या है कि देन व्हाट इज द रोल ऑफ अल्कोहलिक KOH, गेटिंग मी? अभी इस रिएक्शन में ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों को, ये पार्ट मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बट एक स्टूडेंट ने पूछा है तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, नोट, ओके, नॉट फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए नहीं। और लेट मी चेक, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक वेदर दे हैव मेंशन्ड दिस थिंग ऑन टेक्स्ट बुक और नॉट। No, they have not mentioned, टेक्स्ट बुक में they haven't mentioned anything about it, then to मैं तुमको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, फाइन, ओके। यहाँ पे होता क्या है, अगर मैंने जस्ट KOH यूज किया, ओके, तो KOH अगर मैंने यूज किया एक्वस KOH, तो aqueous KOH basically it is a aqueous KOH is a what? It ionizes in water to give K plus and what, OH minus. Correct? Got it?
OH minus बनाएगा, where OH minus is a what? It is a base. करेक्ट. अच्छा, इस बेस का फंक्शन क्या है? Why we need base in the reaction medium? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, base is required or it is needed to abstract, or better I'll write to eliminate बीटा हाइड्रोजन एटम. समझे? याद रखना, हम बेस क्यों अपने को चाहिए? ताकि हम क्या कर सके, बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल सके. समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा मैं तुम्हें अल्कोहलिक KOH का एक बताता हूँ. अल्कोहलिक KOH में क्या होता है? व्हाट इज अल्कोहल? ROH प्लस व्हाट? KOH. ये दोनों रिएक्ट करते हैं, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक KOH बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अल्कोहलिक KOH में क्या होता है एग्जैक्टली exactly? देखो, ये H और ये OH रिएक्ट होके वाटर बन जाता है, और क्या मिलेगा तुम्हें? ROK बनेगा. ओके, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे क्या मिला? ROK प्लस वाटर मिला. बराबर, सबको समझ में आया? ये प्लस वाटर, द बॉय स्टूडेंट हु वाज asking this question, ये मिला. करेक्ट. अब अपने पास जो ROK मिला ना, ये ROK जो मिला, ये भी एक बेस है. इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेस. अब हम लोग को कंपेयर करना है, जब ध्यान से चलो देखना. यहाँ पे अपने पास अब दो बेस है, OH माइनस, और अगर मैं ROK को, अगर मैं K को हटा दूं ना, अगर मैं K को हटा दूं तो मुझे दूसरा बेस मिलेगा RO माइनस. इसका नाम है हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है एल्कोक्साइड. गॉट इट? सी, व्हेन यू compare the bases, it is the alkoxide is stronger base than what? Hydroxide. Correct? समझ में आ रहा है? यस और नो में रिप्लाई करो. अगर तुमने एक्वस KOH यूज किया होता तो क्या होता, और अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हो तो क्या होगा? तो एक्वस KOH क्या बनाएगा? OH माइनस हाइड्रोक्साइड बेस, और अल्कोहलिक KOH क्या बनाएगा? अल्कोक्साइड बेस. अल्कोक्साइड बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और वो बीटा हाइड्रोजन को इजीली निकाल सकता है. अंडरस्टूड? यस. यस और नो में तो कम से कम बोलो, अगर समझा नहीं समझा तो. या, आर यू देयर बॉयज गर्ल्स? क्या हो गया? मैं एग्जिट तो नहीं हो गया ना मीटिंग से? यस सर. या प्लीज रिप्लाई. इन तो मुझे मालूम पड़ता नहीं है कि अब आज मेरे पास दूसरा कोई डिवाइस नहीं है ताकि मैं तुम लोग को देख सकूं वहां पे. ओके, कैन इजीली रिमूव बीटा हाइड्रोजन. ओके, नो समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों अल्कोहलिक KOH का क्या मतलब मकसद क्या है, क्यों यूज करते हैं अल्कोहल? अगर तुमने एक्वस KOH यूज कर दिया ना, तो वहां पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वहां पे एलिमिनेशन नहीं होगा. अंडरस्टैंड? करेक्ट. तो ये जो मैंने अभी जस्ट तुम लोग को मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया ना, इट्स जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है. ये तुम्हें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, याद रखना, नहीं तो तुम इसको भी प्रिपेयर करोगे और टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है. क्लियर? So, हाँ, या. so why alkoxide ion doesn't substitute instead of OH minus like nucleophilic back? या वो सब्स्टिट्यूशन भी करेगा, बट मेजरली इट इज कंसर्न विथ व्हाट? द एलिमिनेशन. सो व्हेनेवर यू यूज एन अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH, अगर तुम अल्कोहलिक KOH यूज करोगे ना, तो दो रिएक्शन कॉम्पीट होता है वहां पे. एक है ईथर फॉर्मेशन और दूसरा है अल्कीन फॉर्मेशन. अंडरस्टूड? क्योंकि ये अल्कोक्साइड जो है ना, ये अल्कोक्साइड, देखो whatever you are asking ना, it's अभी तुम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये सब चीजें मैं आगे कवर करूंगा. ठीक है. तो अभी यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है ना, ROK जो दिख रहा है ना, अल्कोक्साइड. ये अल्कोक्साइड जो है ना, एक टाइप का बेस है जो बीटा कार्बन पे अटैक कर सकता है, और वो अल्फा कार्बन को भी अटैक करके Br को हटा के ईथर भी बना सकता है. तो इस रिएक्शन में ना दो रिएक्शन कॉम्पीट होते हैं. कॉम्पीट मतलब पैरेलल चलते हैं. एक है अल्कीन फॉर्मेशन और दूसरा ईथर फॉर्मेशन. करेक्ट. अगर तुम थोड़ा सा कंडीशन फेवरेबल दोगे एलिमिनेशन के लिए, तो एलिमिनेशन विल प्रोसीड
and you will get alkene as a major product. Correct? तो उसमें भी order है, if you use a primary alkyl halide use करोगे ना, तो exclusively तुम्हें क्या मिलेगा, sorry, you will get alkene plus ether. लेकिन अगर तुम टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज करोगे ना, तो अल्कीन प्रेफरेंशियली मिलेगा. वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, या नहीं डिस्कस किया तो मुझे रिमाइंड करना. तो अभी तुम्हारा क्वेरी सॉल्व हुआ कि अल्कोहलिक KOH यूज करने से क्या होता है. अल्कोहलिक KOH तुम्हें ऐसे याद रखना है, अल्कोहलिक KOH gives alkoxide ion. Alkoxide ion is a stronger base as compared to what? Hydroxide ion. And therefore, it eliminates a hydrogen atom from beta carbon to give alkene. अगर मैं यहाँ पे एक्वस मैंने लिया होता ना, एरो पे एक्वस, मतलब कहने का मतलब KOH को ना हम दो मीडियम में बना सकते हैं. अगर मैंने पानी में घोला तो मुझे एक्वस KOH मिलेगा, और मैंने अगर अल्कोहल में घोला तो अल्कोहलिक KOH मिलेगा. अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है ज्यादा, और एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है. ठीक है, तो अभी ये इतना समझा, तो मैं आगे जाता हूँ फिर. करेक्ट? यस सर. चलो ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज पे भी जाऊंगा मैं. ये इतना पार्ट तुम लोगों को मैंने बता दिया है. या अभी उसी को कंटिन्यू करने में, एलिमिनेशन रिएक्शन को ही कंटिन्यू करना. ओके, एग्जांपल नंबर 2. ओके, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड पे अपने को रिएक्शन देना है. ओके, कौन बताएगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला? कौन बताएगा जल्दी? या एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला. यस. CH3 single 2 single नो नो, CH2. Yeah. आवाज ब्रेक हो रही है. विनायक, इसमें जरा कनेक्ट करो ना, that you connect that. I want to see students. एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br. ओके ठीक है, तुमने बोला यही होगा, लेकिन यहाँ पे सुना ही नहीं पड़ रहा था. बोलो. प्लस KOH, एरो पे क्या आएगा? अल्कोहलिक एंड व्हाट? हीट. करेक्ट. चलो बोलो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा कार्बन लेबल करो. अल्फा एंड बीटा कार्बन लेबल करो जल्दी से. CH2 alpha. CH2 अल्फा, पहला CH2 अल्फा है. CH2 के नेक्स्ट में जो CH2 है वो बीटा है, और जो लास्ट वाला है उस गैमा है, उसमें अपने को मुझसे कुछ इंटरेस्ट नहीं है. करेक्ट. बोलो, कम ऑन एक्सप्लेन करो फटाफट. Bromine from alpha CH2 will go with combine with potassium, and KBr, yeah. beta hydrogen from beta carbon will combine with OH minus to give water. वाटर, ऐसे. करेक्ट, ऐसे. करेक्ट. तो ये क्या बनेगा? यू गेट ओके सॉरी, you get CH3 single bond CH double bond CH2 plus KBr plus H2O. ये है ना रिएक्शन. करेक्ट. दिस इज व्हाट? प्रोपीन. दिस इज व्हाट? प्रोपीन. ठीक है ना? समझा ये रिएक्शन सबको? Yes sir. Yes sir. ओके ओके फाइन. अगर 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 मेरा कंपाउंड जो है, if it is having more than one, type of beta carbon atom, then what will happen to it? वो मैं वो केस डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, जरा ध्यान देना. ये एग्जांपल जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. जस्ट गेट इट द टाइल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो. एक्शन ऑफ
एग्जाम्पल नंबर 3 है, याद रखना ये। चलो, कौन बताएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर? यस, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। CH3, CH bonded to chlorine and then it bonded to CH2 and single bond CH3. ओके, क्लियर, यही है। ओके, अच्छा, अब इसमें अल्फा बीटा कार्बन एटम्स हम लोग लेबल करेंगे, ठीक है ना। सी द कार्बन अटैच्ड टू Cl इज अल्फा, करेक्ट। ओके, अब जरा बताओ बीटा कार्बन इसमें कौन कहाँ पे है? बीटा कार्बन इट हैज गॉट, हाँ, इट हैज गॉट टू बी, इसके पास 2 बीटा कार्बन है। यस, नहीं, एक तो राइट हैंड साइड में है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो चलो दोनों को मैं बीटा लेबल कर देता हूँ। ये बीटा है और ये भी बीटा है। आर दे सेम और डिफरेंट? टेल मी, दोनों बीटा कार्बन एटम सेम है कि अलग अलग है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, मोर हाइड्रोजन। हाँ, तो 2 बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन जो राइट हैंड साइड वाला इसमें 3 हाइड्रोजन है, जो लेफ्ट हैंड वाला है इसमें 2। तो हम लोग ऐसे करते, एक को बीटा लिखेंगे और एक को बीटा डैश लिखेंगे, ऐसा, जस्ट टू so as to distinguish between these two beta carbon atoms, correct, isn't it? देखो, जो मैंने बीटा से लेबल किया है ना, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, और जिसको मैंने बीटा डैश से लेबल किया है उस पे 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट ना। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं देखो, अल्फा कार्बन से क्या जाएगा? Cl, बराबर। अल्फा कार्बन से क्या एलिमिनेट होगा? Cl। और हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होने वाला है? बीटा से, या तो बीटा डैश से, करेक्ट। तो बीटा से अगर एलिमिनेट हुआ तो एक प्रोडक्ट बनेगा, और अगर बीटा डैश से एलिमिनेट हुआ तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस हैं, या इनफैक्ट 2 प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इसके लिए हम पहले से ही, हम लोग को मालूम पड़ गया 2 प्रोडक्ट बनने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरो को ना ऐसे बाइफरकेट कर लेंगे, ऐसे, सी लाइक दिस, ऐसे, समझे ना। 2 प्रोडक्ट देगा ये रिएक्शन। अगर तुम्हें याद होगा तो शायद से ये चीज मैंने तुमको 11th में भी पढ़ाई थी, अगर तुम्हें याद हो तो की बात कर रहा हूँ, हाँ, याद रखना। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिटरली ना यहाँ पे एरो पे लिखूंगा, करेक्ट। सो मैं एरो पे यहाँ पे लिखूंगा कंडीशन, यहाँ पे लॉस ऑफ H atom फ्रॉम बीटा, करेक्ट। और दूसरे में क्या लिखूं मैं? लॉस ऑफ H atom फ्रॉम बीटा डैश, करेक्ट। और Cl तो अल्फा से ही जाएगा, बराबर। ये देखो, ये KCl बना। अब जरा ध्यान से देखो स्क्रीन पे, मैं पहले H कहाँ से निकाल रहा हूँ? पहला H मैं कहाँ से निकालने वाला हूँ? बीटा से, करेक्ट। बीटा से H और ये OH मिलके क्या बन जाएगा? वाटर। और डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा मुझे बोलो? डबल बॉन्ड किधर लिखूं मैं? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ए प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया सबको? प्लस KCl प्लस H2O, गॉट इट? ये सबको समझा? इस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूट 1इन, ठीक है। अब मेरा हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है? मुझे बीटा डैश से निकालना है। जब तुम हाइड्रोजन बीटा डैश से निकालोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यू गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KCl प्लस H2O,
करेक्ट। नाउ ये जो प्रोडक्ट मैंने अभी दूसरा प्रोडक्ट बनाया इसका नाम है ब्यूट-2-ईन। सो इसका मतलब हुआ अगर तुमने 2-क्लोरोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट किया तो अपने को 2 अल्कीन मिलता है। पहले का नाम है ब्यूट-1-ईन एंड सेकंड वन इज अ ब्यूट-2-ईन। और हमने स्टडीज में क्या देखा कि ब्यूट-1-ईन जो है ना वो माइनर प्रोडक्ट है, कम बनता है, और ब्यूट-2-ईन इज अ मेजर प्रोडक्ट। समझे। और इस टाइप के रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम है सेटजेफ। तो तुम्हें इसको ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ्स रूल। करेक्ट। मोर substituted alkene is the major product। समझे। तो अब मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ और फिर सेटजेफ रूल तुम फ्रेम कर सकते हो। अब जरा ना ब्यूट-1-ईन एंड ब्यूट-2-ईन को जरा ध्यान से देखो। ब्यूट-1-ईन का फॉर्मूला मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। करेक्ट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सॉरी ओके, पहले मैंने ये लिख रहा हूँ, ये ब्यूट-2-ईन है, ब्यूट-2-ईन है। करेक्ट। और दिस इज योर ब्यूट-1-ईन। ध्यान से सब लोग देखना, ब्यूट-2-ईन में डबल बॉन्ड ये है। करेक्ट। ये डबल बॉन्ड है तुम्हारा। करेक्ट। और ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो डबल बॉन्ड दोनों साइड से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट से घिरा हुआ है ना। डबल बॉन्ड इनफैक्ट बीच में है और दोनों साइड में सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और जो अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है ना, इट इज ऑलवेज व्हाट, मोर स्टेबल। करेक्ट। और जरा दूसरे केस को देखो, तुम्हारा ये डबल बॉन्ड है, बराबर, ये डबल बॉन्ड है, वी हैव गॉट ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और इस साइड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसका नाम क्या है, इट इज ब्यूट-1-ईन। करेक्ट। इट इज ब्यूट-1-ईन। करेक्ट। एंड दिस इज द व्हाट, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। समझे। तो अभी सेटजेफ ने क्या देखा कि जब हम लोग ऐसे रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं ना, तो अपने को 2 टाइप का अल्कीन फॉर्म होते हुए दिख रहा है। एक अल्कीन जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है और दूसरा मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और फिर जब हम रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं ना, जब उनको अलग करते हैं, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो मेजर प्रोपोर्शन में बना। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस को सेटजेफ ने स्टडी किया और फिर उसने एक जनरलाइजेशन बनाया। जनरलाइजेशन मतलब एक रूल बनाया। वो रूल क्या बोलता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्काइल हलाइड को अगर तुम अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करोगे तो वहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं और वो अल्कीन ज्यादा बनेगा जो highly substituted होगा। Correct? That is what is the Setzap's rule. Have you understood this? Have you followed the rules? मतलब रूल क्या है, समझ में आया सबको? ओके चलो ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का, इट्स ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। सेटजेफ रूल समझा सबको। अगर एग्जाम में आया डिफाइन सेटजेफ रूल तो तुम वहां पे क्या बोलोगे, व्हेन एन एलिमिनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, करेक्ट, in an alkyl halide, correct, then the alkene which is more substituted is formed as the major product। या इसी को तुम दूसरे ढंग से भी बोल सकते हो, एलिमिनेशन रिएक्शंस में हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से ज्यादा निकलता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। मतलब अब जरा ध्यान से देखो ना, अभी बीटा और बीटा डैश 2 बीटा कार्बन एटम्स है। करेक्ट। बीटा एंड बीटा डैश, हाइड्रोजन कहाँ से ज्यादा करके कहाँ से जा रहा है हाइड्रोजन, वो बीटा डैश से जा रहा है, इसीलिए तो तुम्हें ब्यूट-2-ईन मेजर मिल रहा है। अगर हाइड्रोजन ज्यादा करके बीटा से निकला होता है ना तो तुम्हें ब्यूट-1-ईन मेजर मिलता है ना। गेटिंग मी और नॉट? तो इसका मतलब कहने का मतलब इसे समझो, एवोगाड्रोस नंबर है, मॉलिक्यूल है
एवोगैड्रो नंबर ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से जो हाइड्रोजन जाएगा वो बीटा डैश से निकलेगा, करेक्ट, इस तरह से। ओके, ये सेट्ज़ेप्स रूल है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा और मैं वहां पे तुम लोगों को सेट्ज़ेप रूल के बारे में थोड़ा सा लिखूंगा, डेफिनेशन, और साथ में हम लोग एलिमिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखेंगे, करेक्ट। ओके, सेट्ज़ेप रूल क्या बोलता है या गाइस, देखो ध्यान से, सेट्ज़ेप क्या बोलता है। सेट्ज़ेप रूल बोलता है कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस लाइक dehydrohalogenation reaction or dehydration reaction, the hydrogen atom is lost, the hydrogen atom, हाँ ठीक है, ये आर्टिकल ऐड कर देता हूँ, the hydrogen atom is lost from the beta carbon or from that beta carbon atom, ऐसे भी लिख सकते हो, from the beta carbon or from that beta carbon atom which contains less number of hydrogen atom. Okay, so as to give what, the more substituted alkene as the major product, correct. This is known as Setzeff's rule. इसका बोलने का मतलब क्या है कि Setzeff रूल ना तुम अल्कोहल्स में भी अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट। अगर ओके, मैं फिर से प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा कंपाउंड है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जरा सब लोग ध्यान से देखो, अगर मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया तो मुझे इसमें क्या चेंजेस करना होगा, जरा देखो ध्यान से। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर मैंने लिया या ब्यूटान टू ऑल लिया, ब्यूटान टू ऑल, गाइस नो वन इज रिप्लाइंग। Yes, हाँ बोलो, क्या चेंजेस करेंगे sir, मुझे। should substitute alcohol, OH, देखो OH. मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, ओके, तुम लोग के लिए चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये AOH हो जाएगा ऐसा, करेक्ट, करेक्ट। Yes, तो ये sir. तुम्हारा अब उस केस में ना तुम्हें KOH नहीं लेना है, अल्कोहलिक KOH नहीं लेना है, समझ में आया। खाली उसको हीट करना है विथ व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इजंट इट। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कितना रहेगा, सेकेंड 60%, और हीट कितने पे करना है, 373 केल्विन पे हीट करना है। क्या होगा, इसमें से वाटर निकलेगा, करेक्ट। ध्यान से देखो, OH निकलेगा अल्फा से, H बीटा से या बीटा डैश से। तुम्हें दो प्रोडक्ट दिखाई पड़ेंगे, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन प्लस वाटर, KCl नहीं निकलेगा, समझे कि नहीं। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, इधर भी वही होने वाला है, ब्यूट 2 इन क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, समझे। तो अगर एग्जाम में आता है एक स्टेट एंड एक्सप्लेन सेट्ज़ेफ़ रूल, स्टेट एंड एक्सप्लेन सेट्ज़ेफ़ रूल, तो तुम क्या करोगे, सेट्ज़ेफ़ रूल का डेफिनेशन दोगे और एक एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करोगे, चाहे वो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेना या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेना। समझ में आया सबको, गॉट इट और नॉट। तो ये Yes, sir. या तो वही रूल है, दोनों जगह पे अप्लाई होता है, समझ में आया। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। सो एलिमिनेशन रिएक्शंस, ओके, जो रिएक्शन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ओके, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, ओके। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, करेक्ट। सेकंड, carried out, it is carried out using what, alcoholic KOH, समझे, alcoholic KOH में इसको रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे। इन केस ऑफ unsymmetrical alkyl halides, major product is formed according to या Setzeff's rule, ठीक है। Fourth, in this reaction H and X are lost from the adjacent carbon atoms, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं H beta and X alpha, correct, and hence
it is also known as what? Dehydrohalogenation reaction. Clear? Understood or not? करेक्ट. Yes. हाँ तो Sir. अभी हाँ या अभी इसमें तुम्हें कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए, ये पार्ट हो गए. ठीक है, अभी मैंने तुम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन भी बता दिया. अभी हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. या चल सम कुछ क्वेरीज है तो बोलो जल्दी से. Shall we proceed? Yes, So, sir. या बोलो. सर अगर हम लोग को एल्केन से अगर कोई अल्काइल हैलाइड बनाना है और एल्केन से कोई अल्कोहल बनाना है तो फिर सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? अगर तुम्हें अल्कोहल बनाना है ना, तो अल्कोहल बनाने के लिए अल्कीन, देखो तुमने दो बोला, RX और RCH डबल बॉन्ड CH2 ना, ये अल्काइल हैलाइड है और ये अल्कीन है. अल्कोहल में कन्वर्ट करना है. हाँ बराबर. मेरे को RH बनाना है और ROH बनाना है फ्रॉम एल्केन, एल्कीन से नहीं. RX बनाना है और ROH बनाना है, यही बोल रहे हो ना, फ्रॉम अल्कीन. हाँ करेक्ट. तो कौन सा, मतलब यू मीन टू से ये तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा बेस्ट मेथड यू आर आस्किंग मी? तो नहीं, कौन सा बेस्ट मेथड होगा RX और ROH बनाने के लिए? क्योंकि अगर हम लोग बोलो. क्योंकि अगर हम लोग RX बनाएंगे विथ डिफ्यूज्ड यूवी लाइट एंड सनलाइट वाला अपना मेथड क्लोरीन वाला, तो फिर गुड मेथड नहीं है. हाँ, तो फिर फिर कौन सा method? अगर तुमने अल्केन से अल्काइल हैलाइड बना रहे हो, RH से RX बना रहे हो, तो तुम्हें RH से RX बनाते समय तुम्हें हेलोजिनेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. करेक्ट. और ओके फ्लोरीन. तो यहाँ पे हर एक रिएक्शन ना उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है. तो अल्केन से अल्काइल हैलाइड हेलोजन यूज करके बनाना इज नॉट अ गुड मेथड. करेक्ट, समझे? अच्छा, RH से ROH कन्वर्शन जो है, अब इसमें ना बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं. अगर तुम इसको वाया RX जाओगे तो अगेन अल्कोहल का यील्ड अफेक्ट होगा. कैसे? अगर तुम RH से पहले RX बनाओगे, RX से तुम ROH बनाओगे, तो अब इस पूरे कन्वर्शन में क्या हो रहा है, RH से RX बनाने के लिए तुम्हें X2 यूज करना पड़ेगा. बराबर. और यहाँ से RX से ROH बनाने के लिए एक्वस KOH यूज करना पड़ेगा. ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड में क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस होगा. करेक्ट. तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग RH यूज अल्कीन. करेक्ट. अल्कीन से तुम अल्कोहल बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ना जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, इथाइल अल्कोहल इन पर्टिकुलर, वो अल्कीन से बनता है, इथीन से बनता है. ठीक है. हम लोग को पहले अल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर अल्कीन से नहीं, उसको बना. तो बहुत इट विल बिकम वेरी कॉस्टली. मेरे से कि तुम अल्केन लोगे, अल्केन से तुम अल्कीन बनाओगे. करेक्ट. लेकिन तुम फॉरगेट ना, व्हाई यू आर लाइक अल्केन के पीछे क्यों हो तुम्हारे सर को. एक रिएक्शन आपने दिए थे तो फिर मैंने वो ब्रोमीन डिफ्यूज सनलाइट और यूवी लाइट से किया था, तो फिर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखा ये रिएक्शन गलत लग रहा था. बोल रहा था कि मोनो एंड पॉली. कौन सा होमवर्क दिए थे आप एक सर हाँ, कि इथेन से ग्रिग्नास रिएक्शन. ग्रिग्नार्ड्स वाला ना, तो वो वहां पे क्या था कि अल्केन तुम लोगे, उस पे ब्रोमिनेशन करोगे. करेक्ट. यू विल गेट RBr और फिर उसमें मैग्नीशियम ऐड करोगे टू गेट RMgBr. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ना तुम्हें अल्केन से ही प्रोसीड करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है. समझे? और वो भी कैसे होता है मालूम है, हम लोग ऐसे जो भी हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा रिएक्शन अच्छा है, कौन सा रिएक्शन खराब है ना, तो उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से कंपेयर करके करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी बच्चे को बताना है कि वो बच्चा अच्छा है कि खराब है ना, तो उसके लिए तुम उसके सामने कोई रेफरेंस रखते हो ना, कोई फला बच्चा रखते हो. जैसे तुम्हारी मम्मी बोलती है, अरे तू तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर, देखो दूसरा घर में जो बच्चा है वो पढ़ाई करता है, तो वो रेफरेंस हो गया ना. तो दो रिएक्शन को हम कंपेयर करते हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा दी बेस्ट है, इस तरह से. ठीक है. तो ये सेट समझा. अभी हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सर
हाँ तो हाँ फिर बोलो। एल्कीन कैसे बना सकते हैं एल्केन से? अल्किन से अल्किन बनता है ना, इट्स बाय क्रैकिंग एंड पायरोलाइसिस रिएक्शन से बनता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। अल्केन लो, क्योंकि जब हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं ना, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो हाँ। निकालते हैं माइन करके, तो उसके अंदर बेसिकली हमने को अल्केन्स ही मिलता है ना, लोअर अल्केन्स, हायर मिडिल अल्केन्स, हायर अल्केन्स। किसका माइक चालू है, बंद करो। ओके। तो हम लोग अल्केन्स को क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल रहता है ना, उसको बड़े से कंटेनर में बंद करते हैं, उसमें एयर नहीं होना चाहिए। एयर होगा तो क्रूड ऑयल जल जाएगा, करेक्ट। तो एयरलेस मीडियम में उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस और पायरोलाइसिस। तो जब हीट करोगे तो लॉन्ग चेन अल्केन जो है ना, वो टूट जाता है इनटू लोअर अल्केन अल्कीन हाइड्रोजन गैस में। इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग बोलते हैं। तो जो भी अल्कीन हम लोग को मिलता है ना, वो पेट्रोलियम से ही आता है ना, वो क्रूड ऑयल से ही आता है। लेकिन इतना इतना मतलब एज फार एज सिंथेटिक रूट इज कंसर्न, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट से एंड तक नहीं जाते। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर तुम सपोज तुम डिसाइड करते हो कि मुझे कोई डोसा डोसा का शॉप ओपन करना है या इडली का शॉप ओपन करना है, तो क्या तुम पहले चावल उगाओगे, चावल हार्वेस्ट करोगे, फिर उसकी कटाई करोगे, फिर उसको उसको पीसोगे, फिर डोसा बनाओगे, ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। रेडीमेड अपने को मिल रहा है चावल, चावल से हम लोग उसका बैटर बनाएंगे और प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग मी? द लॉजिक समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? सो हाँ वेन सर। हाँ, वेन एवर यूर डिसाइडिंग ना कि कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा, तो उसको दो मेथड को सामने रखो कि ये दो मेथड हैं, इसमें कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा मेथड अच्छा नहीं है, ऐसे। Got it? So now let us move to the next method. That is method number 3. It is, साइज 4। yeah, bolo, fourth. Okay, fine. It's a fourth. Wait. Fourth, it's a substitution reaction. अब substitution reaction क्या है? What is substitution reaction? It's a reaction in which an atom or group of atom replaces, okay, the the another atom or group of atom present in a molecule. Substitution, correct? एक atom या group of atom जाएगा, उसकी जगह पे नया group of atom आएगा. That is what is substitution reaction, correct? Okay, मैं यहाँ पे एक point add करूँगा. It is one of the commonest reaction of alkyl halides, correct? Okay, alkyl halides undergo nucleophilic nucleophilic substitution reactions. मतलब अगर मैंने पूछा कि अल्काइल हाइड्स में कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट। तो अल्काइल हाइड्स जो रिएक्शन देता है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट। क्यों ऐसा बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा, करेक्ट। ओके, नाउ these reactions X from Rx is replaced by, ओके अब जरा ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स आर एक्स का एक्स है ना, उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, इज रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल्स, लाइक ध्यान से देखना सब लोग, सॉरी, डैश ओ एच, डैश सी एन, डैश एन सी, डैश एन एच टू, डैश एन ओ टू, डैश ओ एन ओ, करेक्ट। तो ओके, एंड वन मोर, डैश ओ आर
and last one is dash O C double bond O R. तो ये तुम लोगों को ना मालूम मतलब हो जाना चाहिए कि इतने सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, x को हटाएंगे बाय OH। अगर मैंने x RX, लुक एट द RX, मैं यहाँ पे एक ना सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पे मैं फ्रेम करूंगा तुम्हारे लिए। यहाँ पे चलो ध्यान से देखना। मेरे पास RX है, करेक्ट। RX में से मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना सब लोग। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस बनेंगे। मैं x को हटा दूंगा, वहां पे OH लेके आऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ROH। समझे? अगर मैंने x को हटा दिया बाय CN तो आई गेट RCN, करेक्ट। मैं रीजन भी लिखूंगा एरो पे, डोंट वरी। अगर मैंने x को हटा दिया NC से तो मुझे मिलेगा RNC। अगर मैंने x को हटा दिया say by NH2 से तो I get RNH2, correct. If I substitute x by NO2 I get RNO2, correct. If I substitute x by the OR group, okay, ONO group, तो मुझे क्या मिलेगा, I get RONO, correct. If I substitute x by OR I get ROR। इसको मैं ना R डैश करता हूँ, इसको R डैश करता हूँ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है सबको? हाँ Yes, सर। sir. अगर बाउंस हो रहा है तो बोलो। Yes. अब मैं एक्चुअली आई एम जस्ट यस मेकिंग सर। अंडरस्टैंड दिस। अभी इसके बाद मैं देखो टेक्स्ट बुक में ना ऐसे ही दिया हुआ है, ओके। वो दे हैव गिवन टैबुलर फॉर्म, वो टैबुलर फॉर्म में नहीं फॉलो करूंगा। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट, ओके, डोंट वरी, क्योंकि ना ये एग्जाम में आएगा ही आएगा श्योर। इसमें से एक दो रिएक्शन आएगा ना। द लास्ट वन, अगर मैंने x को हटाया विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप तो मुझे क्या मिलेगा, आई गेट ROC डबल बॉन्ड OR डैश। अब तुम्हें ना खाली फैमिलीज के नाम बताने, फिर इसके बाद में हम लोग आगे हेडिंग बनाएंगे। बोलो ROH इज व्हाट? अल्कोहल, Alcohol. साइनाइड, आइसोसाइनाइड, या अमाइन, नाइट्रो वेरी गुड। ग्रुप, साइनाइड, वेरी गुड। आइसोसाइनाइड, वेरी गुड। आगे बोलो। अमाइन, अमाइन, वेरी गुड। अमाइन नाइट्रो ग्रुप, या नाइट्रो कंपाउंड, वेरी गुड। ONO नहीं पता। हाँ, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। इट इज व्हाट, नाइट्राइट। देखो ना, ये नाइट्रो नाइट्रो। नाइट्राइट में क्या फर्क है। नाइट्रो NO2 है, R जो है ना N से बॉन्ड हो रहा है, और नाइट्राइट में ना RO से बॉन्ड हो रहा है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप? ईथर, ईथर, वेरी गुड। ईथर, वेरी एस्टर। गुड। ईस्ट एस्टर, वेरी गुड। फॉर ओके, समझा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट X, करेक्ट, बाय द वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, करेक्ट, टू गेट the products, correct. तो यहाँ पे इतने सारे रिएक्शन हो रहे हैं, बराबर। तो अब मैं ना रिएजेंट्स मेंशन करूंगा, ओके, रिएजेंट्स मेंशन करूंगा। अगर मुझे पहला रिएक्शन अफेक्ट करना है तो I'll make use of aqueous NaOH और aqueous KOH, और make use of moist silver oxide, moist Ag2O। अगर मुझे दूसरा रिएक्शन अफेक्ट करना है तो I'll make use of aqueous KCN, पोटेशियम साइनाइड, ओके। और अगर मुझे सॉरी नॉट एक्वस, सॉरी नॉट एक्वस, अल्कोहलिक, सॉरी, ओके, पहला ही खाली एक्वस रहेगा, बाकी सब अल्कोहलिक रहेगा। KCN यूज करूंगा, अल्कोहलिक KCN, ठीक है। नेक्स्ट में अल्कोहलिक AgCN यूज करूंगा, रिमेंबर, AgCN यूज करूंगा। ये सब तुम लोग को याद रखना है, बाय हार्ट करो या उसकी केमिस्ट्री समझो, दो ही ऑप्शंस है, ओके। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अल्कोहलिक अमोनिया NH3, इट इज हॉफमैन्स रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे NO2, ओके, Na, सॉरी, वेट अ मिनट, इसको डिलीट करता हूँ, एक मिनट रुको। या बराबर लिखा था मैंने। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अल्कोहलिक NaNO2 और KNO2, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अल्कोहलिक नहीं, गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, वेट अ मिनट। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अल्कोहलिक AgNO2 और यहाँ पे यूज करेंगे अल्कोहलिक NaNO2 और KNO2,
ओके, नेक्स्ट में हम लोग यूज करेंगे RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, और यहाँ पे यूज करेंगे सिल्वर एसिटेट और सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये जो है ना, इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ, ये सब कॉमन रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, formation of amine, formation of nitroalkane, this is formation of alkyl nitrite, this is formation of ether, and the last one is formation of ester। ठीक है, तो अभी तुम्हें इसको कैसे पढ़ना है, देखो रिएक्शन में, ओके, साइड प्रोडक्ट मैंने नहीं मेंशन किया है, वो उसमें साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा मैंने अभी तक नहीं बताया है। तुम इसको कैसे रीड करोगे, सी ये जो चार्ट दिया है ना, चार्ट को कैसे तुम रीड करोगे, ध्यान से देखना सब लोग। व्हेन एन अल्काइल हलाइड, व्हेन एन अल्काइल हलाइड इज हीटेड विथ, सब जगह पे हीटिंग साइन आएगा, मैंने लिखा नहीं है। When an alkyl halide is heated with aqueous NaOH or aqueous KOH or moist silver oxide, it gives what? Corresponding alcohol। ठीक है, दूसरे रिएक्शन को क्या बोलोगे? When an alkyl halide RX is heated with alcoholic KCN, alcoholic potassium cyanide, we get alkyl cyanide। Correct? Next reaction बोलो, next reaction का statement, come on, नेक्स्ट रिएक्शन का स्टेटमेंट बोलो। When an alkyl halide is heated with alcoholic silver isocyanide gives हाउ कम सिल्वर When साइनाइड? an iso When an alkyl halide is heated with alcoholic AgCN, AgCN का नाम क्या है? सिल्वर साइनाइड, we get what? अल्काइल आइसोसाइनाइड। समझे? KCN पोटेशियम साइनाइड है, AgCN सिल्वर साइनाइड है, दोनों साइनाइड ही है, लेकिन वहां पे जाते ही प्रोडक्ट का नेचर बदल जाता है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट का नेचर बदलने के पीछे का जो साइंस है वही पढ़ना है तुम लोगों को। ठीक है, आगे बोलो। When an alkyl halide is heated with alcoholic ammonia, very good, it gives it alkyl gives amine. अल्काइल अमाइन, वेरी गुड, अल्काइल अमाइन। इस मेथड का नाम है हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन। चलो आगे बोलो। When an alkyl halide is heated with alcoholic silver nitrite, AgNO2 का नाम है AgNO2 और KNO2, ये दोनों केमिकल का नाम क्या है? सिल्वर नाइट्राइट, NiTrite, समझे? सिल्वर नाइट्राइट। और ये क्या है? पोटेशियम नाइट्राइट, NiTrite, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, लुक एट दिस हियर, बोलो इसका नाम है ना, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, KNO3 को चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। ये एक्सप्लोजिव है, KNO3 इज एन एक्सप्लोजिव। करेक्ट? अगर इसको ना 1 किलो से ज्यादा ऑर्डर किया अमेजोन से, तो तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा क्यों खरीद रहे हो तुम। समझे? आगे NaNO2, करेक्ट? कौन सी चीज? क्या क्या बोला, क्या बोले तुम? कौन सी चीज सर? क्यों इतना तेरे को इंटरेस्ट क्यों है उसमें? मैंने अभी बोल दिया तो बोल दिया, क्या इतना इंटरेस्टिंग लगा तुझे उसमें? बोल। कुछ बनाने वाला है क्या है इधर बैठ के? अरे नहीं ये सर, एक बार ट्राई करूंगा मंगा के, नहीं वो देगी कि नहीं। नहीं, क्या, इट्स अ फूड प्रिजर्वेटिव आल्सो ना, फूड में भी ऐड करते हैं, इट्स अ क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है, ये क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है, तो उसको फूड में भी ऐड करते हैं, कुछ इश्यू नहीं। लेकिन तुम थोड़ी ना कोई क्या अचार विचार बना के बेचने वाले हो क्या? नहीं ना, तो काय को मैं जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ना,
कि ये KNO3 जो है ना, ये इट्स अ फूड प्रिजर्वेटिव, इट्स आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ये वाला। तो ये केमिकल जो मैंने सर्कल किया KNO3, ओके सर। हाँ, तो इसको क्या है फायर क्रैकर्स में, हाँ, क्या हुआ? फायर क्रैकर्स में। हाँ, फायर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, फायर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, लेकिन उसको अगर ज्यादा अमाउंट में अगर किसी फायर प्रोडक्ट में यूज किया तो वो एक्सप्लोजिव हो जाएगा। फायर प्रोडक्ट एक्सप्लोजिव्स, basically fire product is a kind of explosive, correct? We have a different standards of explosives. कुछ मास डिस्ट्रक्शन के लिए होता है ना, वो बड़ा वाला जो, जिसके लिए हम लोग को जेल भी जाना पड़ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला बोलो, कमन हरी अप। RONA का नाम कौन बताएगा? व्हाट इज द RONA? हाउ विल यू नेम RONA? R, ओके, जस्ट हैव अ लुक Sodium हियर। alkoxide. हाँ, सोडियम Alkoxide. अल्कोक्साइड, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैं तुम्हें इसको ना रिलेट करके बताता हूँ, जस्ट सी ऑल ऑफ हियर, जस्ट सी। बोलो इसका नाम, HONA, क्या पढ़ोगे इसको? Sodium hydroxide. होना करेक्ट ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोजन है ना, इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैंने RONA लिखा, RONA लिखा, तो इसको कैसे रीड करोगे? सोडियम पहले पढ़ोगे और फिर R क्या है? अल्काइल, और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ में। तो इसका नाम है सोडियम, देखो, सोडियम और फिर बाद में एल्क, एल्क और फिर क्या आएगा? ऑक्साइड आएगा, सोडियम एल्क ऑक्साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड यूज कर रहे हैं, RONA। अब मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ईथर। सो व्हेन एन अल्काइल हैलाइड, when an alkyl halide is heated with sodium alkoxide, okay, ether is formed. Last reaction, वो okay, इस कंपाउंड का नाम बताना है। what is this chemical known as? RC double bond OH। yes, just look at here, इस कंपाउंड का नाम पहले बताओ। एस्टर, नो 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 नो, ये जो अभी मैंने जस्ट लिखा रेड पेन में, इस कंपाउंड का नाम क्या है? बोलो फटाक से। Alkyl acetate. हाउ कम? ये Sorry, sorry. दिस इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, Sorry, carboxylic ये acid. कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, करेक्ट करेक्ट। तो ये कंपाउंड एसिडिक क्यों? व्हाई इट इज, मैंने यहाँ पे IC एसिड वर्ड क्यों अटैच किया? व्हाई हैव यूज्ड IC एसिड इन दिस नोमेनक्लेचर? बिकॉज ऑफ दिस, ये हाइड्रोजन के लिए मैंने इक एसिड अटैच किया। व्हाई? बिकॉज दिस हाइड्रोजन मेक्स दिस कंपाउंड व्हाट? एसिडिक, करेक्ट। अगर मैं इस H को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, अगर इफ आई ड्रॉप दिस H, सो आई गेट व्हाट? RC डबल बॉन्ड O, बराबर, इतना ग्रुप मुझे मिलेगा, करेक्ट। तो अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? CARBOXYL। इक एसिड ड्रॉप करना पड़ेगा। व्हाई यू हैव टू ड्रॉप इक एसिड? H नहीं है ना वहाँ पे, इट डजंट हैव H, तो इक एसिड नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या अटैच करोगे? यहाँ पे अटैच करेंगे हम ATE। व्हाट? ATE। तो इस ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलेट। इस ग्रुप का नाम क्या है? Carboxylate. अब देखो जरा, लुक एट द स्ट्रक्चर नाउ, लुक एट द स्ट्रक्चर नाउ। उस कार्बोक्सिलेट उल्टा लिखा है मैंने, ओके, उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है? Silver. सिल्वर। तो नाम क्या होगा? Silver carboxylate. सिल्वर कार्बोक्सिलेट, वेरी गुड, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, करेक्ट। और ये जो प्रोडक्ट एस्टर बना है, इसका नाम क्या होगा? या जो एस्टर प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, उसका नाम क्या होगा? I think alkyloate. We stick to the nomenclature, stick to the concept, correct? अभी तुमने कितना, तुम लोग को मैंने बताया ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं बदलने वाला, इसका नाम क्या है? Alkyl कार्बोक्सिलेट। carboxylate. अल्काइल कार्ब, सी फॉरगेट, अब R डैश वो सब कुछ नहीं है, खाली वो जस्ट टू डिस्टिंग्विश, R, 2 R है ना, डिस्टिंक्शन के लिए लिखा है। तो ये जो ग्रुप है ना इतना, इसका नाम तो कार्बोक्सिलेट ही है ना, और ये R क्या है? अल्काइल, तो इसका नाम होगा अल्काइल Carboxylate. कार्बोक्सिलेट। दिस इज हाउ वी नेम एस्टर। ये एस्टर का नोमेनक्लेचर मेथड है। तो याद रहेगा ये जो रिएक्शन चार्ट मैंने बताया। अच्छा, तुम लोग का लेक्चर है क्या अभी इसके बाद? Yes, सर। हाँ, किसका लेक्चर है? सर का लेक्चर है। Arvind sir. Okay, सर का
हाँ फाइन। तो मैं बस ये देखो, ये जो चार्ट है ना न्यूक्लियर, ये जो मैंने चार्ट दिया है ना, प्लीज उसको वर्कआउट करो। और ये मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोग को इसके ऊपर बेस एग्जांपल्स दूंगा। और मुझे क्या चाहिए, ये तुम्हारा चार्ट एकदम प्रिपेयर्ड होना चाहिए। गॉट इट? ओके। सो Yes, sir. या वी स्टॉपिंग हियर। ये मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग को सर के हाथ से, और अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, Sir, ठीक है? sir, what हाँ is meant बोलो। by propellant? प्रोपेलेंट मतलब प्रोपेल करना मतलब किसी चीज को धक्का देना। तो प्रोपेलेंट, दिस इज समथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ रॉकेट साइंस। रॉकेट के रॉकेट्स एंड मिसाइल्स को जब हम लोग ऊपर भेजते हैं, लॉन्च करते हैं ऊपर, है ना, फायर करते हैं, तो वहां पे जो उसके अंदर केमिकल्स यूज होता है ना, दे बर्न एंड दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ थर्स्ट मतलब डाउनवर्ड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और फिर वहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। फॉर एवरी रिएक्शन, एक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और जब वो बर्न होता है केमिकल उसके टेल में, है ना, नीचे की तरफ, जब वो जल के धुआं बना के नीचे धक्का मारता है, तो रॉकेट या जो मिसाइल है या तुम्हारा जो स्पेस रॉकेट है ऊपर की तरफ जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं प्रपल्शन टेक्नोलॉजी, करेक्ट? एंड इट्स अ पार्ट ऑफ रॉकेट साइंस। ओके, या चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।